BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں عالیہ ناز کی. خیبر پختونخوا میں گھریلو تشدد کے خلاف خواتین کو تحفظ فراہم کرنے کے مجوزہ قانون پر حقوق النسواں کے کارکنوں کی جانب سے اعتراضات کیوں؟ آج جبری گمشدگیوں کے خلاف عالمی دن منایا جا رہا ہے. انڈیا کے زیر انتظام کشمیر اور کراچی میں بھی لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے احتجاج ہوا. اور تقسیم کے 70 سال کے سلسلے میں جاری سیریز میں دیکھیے گا مشرقی پاکستان کے بنگلہ دیش بننے کا عمل لوگوں کو کیسے کیسے گھاؤ لگا گیا. انہوں نے مجھے یہ کہا کہ کسی کو مت مارنا، اس لیے کہ اس کی ماں کو اتنی ہی تکلیف ہوگی جتنی مجھے ہوگی. خیبر پختونخوا پاکستان کا واحد صوبہ ہے جہاں گھریلو تشدد کے خلاف خواتین کو تحفظ فراہم کرنے کا قانون موجود نہیں ہے. 4 برس بعد اس قانون کا مسودہ صوبائی حکمراں اتحاد کی خواتین ارکان کی جانب سے تیار تو کر لیا گیا ہے، لیکن اس مجوزہ قانون پر خواتین کے حقوق کے کارکنوں کی جانب سے شدید اعتراضات سامنے آ رہے ہیں. اس نئے مجوزہ قانون اور اس پر اعتراضات کی تفصیل کے ساتھ عزیز اللہ خان. گھریلو تشدد سے متاثرہ یہ خاتون ان دنوں قانونی مشاورت کے لیے مختلف فلاحی اداروں کے چکر لگا رہی ہیں. خاتون کے خلا، بچوں کی حوالگی اور ایک حملے کے مقدمات ان دنوں عدالتوں میں زیر سماعت ہیں. میں تو نہیں جا رہی تھی عدالت میں پھر بھی نہیں جا رہی تھی، لیکن میرے پہ جو 17 سال مار پیٹ ہوئی ہے، جو تکلیف میں نے گزاری ہے، وہ میری بچی گزاری ہے، میں نہیں چاہتی تھی. خیبر پختونخوا میں خواتین پر گھریلو تشدد کو روکنے کے لیے قانون حکمران جماعت اور جماعت اسلامی کی طرف سے تیار کیا گیا ہے، لیکن اسمبلی میں پیش ہونے سے قبل ہی اس پر سنگین اعتراضات سامنے آ رہے ہیں. ان میں بلوغت کی عمر کا تعین 18 سے کم کر کے 15 سال کرنا ہے. اصلاح کی غرض سے والد اور شوہر کو خواتین اہل خانہ کے خلاف اقدامات کی اجازت دینا اور گھریلو تشدد کی تعریف سے نفسیاتی اور معاشی تشدد کو حذف کرنا شامل ہے. یہ اجازت جو قرآن نے دی ہے بس اتنی دیا ہم نے، اور اس طرح کے بل اگر دوسرے لوگ بناتے ہیں اور اس میں شریعت کا لحاظ بھی نہیں کرتے تو وہ ایک مطلب ہے کہ بحث طلب بات کہ آخر وہ کیوں ایسا نہیں کرتے. ہم شریعت کے حدود کے اندر رہتے ہوئے جو بل جو بنایا ہے اس پر اعتراضات کا کوئی جواز اس لیے نہیں بنتا کہ ابھی جو تشدد ہے آپ نہیں روک سکتے. گھریلو تشدد کے حوالے سے اس بل کو قانون کا درجہ دینے کے لیے اس کا فیصلہ یہاں خیبر پختونخوا اسمبلی میں بیٹھے ہوئے اراکین ہی کریں گے. یہ بل صوبائی اسمبلی میں تو جمع کرا دیا گیا ہے اور اب توقع ہے کہ آئندہ اجلاس میں اسے ایوان میں بھی پیش کر دیا جائے گا. سول سوسائٹی کے اراکین کا کہنا ہے کہ اس مجوزہ بل میں ایسی تجاویز شامل ہیں جس سے گھریلو تشدد بڑھنے کا امکان ہے. پاکستان میں میرج سب سے زیادہ پیٹریارکل انسٹیٹیوشن ہے، اس میں آپ ان کو وہ اختیارات دے رہے ہیں جو کہ وجہ بنتے ہیں ڈومیسٹک وائلنس کے. تو اگر آپ اس بل کو پڑھیں تو اس کے اندر آپ کو کافی چیزیں ایسی نظر آئیں گی کہ جو لگتا ہے کہ بجائے کوکس نے وہ ہمارے کیس کو فائٹ کرتے کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کے ساتھ، انہوں نے ان کی جو تجاویز ہیں ان کو ایڈجسٹ کرنے کی اس قانون کے اندر کوشش کی ہے. صوبائی اسمبلی میں اگر یہ بل بحث اور ماہرین کی تجاویز کے بعد منظور بھی کر لیا جائے، لیکن حکومت کے لیے اس قانون پر عمل درآمد ایک مشکل کام ہوگا. عزیز اللہ خان، BBC نیوز، پشاور. اور اسی بارے میں خیبر پختونخوا کے وزیر اطلاعات شاہ فرمان سے نامہ نگار آصف فاروقی نے بات کی اور پہلے ان سے پوچھا کہ حکمراں اتحاد کی جانب سے لائے جانے والے اس بل پر خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیموں کی جانب سے تو تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ سب سے پہلے تو جو وومن کاکس ہے خیبر پختونخوا کے اندر، اس میں پیپلز پارٹی کی خواتین، اس میں ANP کی خواتین، اس میں مسلم لیگ کی خواتین، اس میں PTI کی پاکستان تحریک انصاف کی خواتین، اس میں JY کی خواتین، اس میں جماعت اسلامی کی خواتین، 22 خواتین ہیں. اب 22 خواتین کا ایک کاکس ہے اور وہ ایک بل کے اوپر متفق ہے. اب اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوگی کہ کیا کوئی چیز اس کے اندر
कोई वायलेशन तो लॉ की नहीं है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन तो नहीं है, कहीं फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन तो नहीं है, कहीं इस्लामिक इंजंक्शंस की वायलेशन तो नहीं है। जो आपके इस कानून में ये कहा जा रहा है जी कि जो मर्द हजरात हैं वो अपने घर की ख़वातीन को इस्लाह की खातिर उन पर दबाव भी डाल सकते हैं, वो भी ले सकते हैं, मतलब ये फिर कैसे है? बात ये है कि किसी भी पुरअमन माशरे के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चा स्कूल जाता है तो टीचर किस हद तक इस्लाह की खातिर बच्चे को समझा सकता है, बता सकता है, उसको ये कह सकता है आप डेस्क पे खड़े हो जाए। अब आइडिया बिहाइंड ये है कि ये उसके साथ उसकी कोई ज़्यादती नहीं है। अब एक घर के अंदर बच्चा भी गलत काम कर सकता है, बीवी से भी गलती हो सकती है, शौहर से भी हो सकती है। तो फिर बीवी को भी ये हक देना कि अगर शौहर गलती करे तो वो भी थोड़ी सी ठुकाई करे। बीवियों को आप ना भी देना, वो ऑलरेडी टुकाई करती रहती है, ठीक है। लेकिन कानून में तो आप शाह फरमान साहब, आप कानून में हक लिख के दे रहे हैं उनको। मैं आपको बताऊं ना, जब आपकी फैमिली होती है, जब आपके बच्चे होते हैं, तो जानवर भी अपने बच्चों की हिफाजत करता है। लेकिन हर एक ऐसे नहीं होता, लोग ज्यादती भी तो करते हैं ना। अगर कोई चीज़ इस्लाह से निकल के अगर तशद्दुद पे आता है तो उसके लिए कवानीन मौजूद है। इसका ये मतलब नहीं है कि जो कवानीन इंटैक्ट है, जो आप तशद्दुद नहीं कर सकते, अगर कोई कानून बनता है तो उसमें उस कानून को आप नल एंड वाइड नहीं कर सकते। वो जब बात तशद्दुद तक पहुंचेगी तो वो ऑटोमेटिकली वो इन्वोक हो जाएगी वो लॉ। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर इत्तलात शाह फरमान से नामनिगार आसिफ फारूकी ने बात की। आज दुनिया भर में जबरी तौर पर लापता अफराद का दिन मनाया जा रहा है। इस मौके पर दीगर ममालिक की तरह इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में भी लापता अफराद की बाजियाबी के लिए लोगों की बड़ी तादाद ने मुख्तलिफ मकामात पर धरने देकर एहतजाज किया। श्रीनगर में गुमशुदा अफराद के लवाहिकीन के साथ समाजी और सियासी हलकों ने भी इजहार यकजहती किया। श्रीनगर से रियाज मसरूर की रिपोर्ट। गुमशुदा प्यारों के इंतजार में ये चेहरे मुरझा गए हैं। हमारा दिल यकीन नहीं करता है कि उनके साथ कुछ हुआ है। उनको बाज़ाब्ता किसी ने लिया है, पकड़ के घर लाया है, शाम को रेड डाला है। हम जो लड़के उनके साथ बंद थे 1 साल 1.5 साल के बाद उनको रिलीज़ किया तो उन्होंने बोला हमारे साथ थे। कैसे हम मान लेंगे उनके साथ कुछ हुआ है? 26 साल से लापता बेटे को तलाश कर रही परवीना अहंगर इंसाफ की इस लड़ाई में पेश है। हमारी इंतजार खत्म नहीं हो जाएगा जब तक हमारी मसला हल नहीं हो जाएगा। हमारे पास ना कोई मालगुजार ना कोई जेल है। हम जब तक जिंदा है तब तक लड़ेगा। इंसानी हकूक के इदारे इस मामले की बाकायदा तहकीकात का तवील अरसे से मुतालबा कर रहे हैं। श्रीलंका में 4 कमीशन अपॉइंट हुए हैं, नेपाल में हुए हैं, पाकिस्तान में भी लापता जो है वहाँ भी कमीशन अपॉइंट हुए हैं, थाईलैंड जहाँ भी। लेकिन कश्मीर जो वाहिद है कि यहाँ ये कमीशन अपॉइंट नहीं करते कि कितने लोग लापता। भारतीय दानिश्वरों का एक हल्का भी इनके साथ हमदर्दी रखता है। तो इंडियन स्टेट है वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा है इनको कन्विंस करने में लोगों को कि कश्मीर में जो प्रॉब्लम है वो ह्यूमन राइट्स का प्रॉब्लम नहीं है, वो फ्रीडम का प्रॉब्लम नहीं है, वो पाकिस्तान का प्रॉब्लम है। और ये इस प्रोपोगंडा में इंडियन डेमोक्रेसी काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। और मैं कहूँगा ये इंडियन सिविल सोसाइटी का बहुत बड़ा फेलियर है। कश्मीर के मशहूर बाग गुलिलाला की ये जो छवि देख रहे हैं, ये एक रज़ाकार ने बनाई है जो इन लापता अफराद के लवाहिकीन की यकजहती में बनाई गई है। इससे ये साबित होता है कि कश्मीर पूरी दुनिया को बज़ाहिर बहुत खूबसूरत मालूम होता है, लेकिन इस खूबसूरती के अंदर झांकिए तो इसमें दर्दनाक कहानियाँ छुपी हैं। रियाज मसरूर, BBC न्यूज़, श्रीनगर। और उधर पाकिस्तान में भी लापता अफराद के लवाहिकीन ने आज भी अपना एहतजाज जारी रखा। कराची में हमारे साथी सहर बलोच एक ऐसे ही एहतजाज में मौजूद थी। मैं इस वक्त कराची प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ लापता अफराद की बाजियाबी के लिए कई सालों से एहतजाजी मुजाहरे और रैलियाँ मुनक्कद की जाती रही हैं। आज भी यहाँ वॉइस ऑफ मिसिंग पर्सनस ने भूख हड़ताली कैंप लगाया है, जहाँ लापता अफराद के लवाहिकीन मौजूद हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं तनवीर आरिजो, जिनके वालिद पिछले 5 महीने से लापता हैं। पिछले 5 महीने से आपके वालिद लापता हैं। इस अरसे में आप लोगों को क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा? मुश्किलात जाहिर सी बात है, वो हमारे घर के बड़े हैं और उसी की एक जॉब कमाने वाला वही एक था, तो मुश्किलात तो जाहिर सी बात फाइनेंशियली भी बहुत होती हैं और उसे हम याद भी बहुत करते हैं। पिछली ईद भी हमारी उसके बगैर गुजरी, अब एक और ईद आ रही है उसके बगैर हमारी गुजर रही है।
तो फर्दर अभी उसका कुछ पता ही नहीं चल रहा कि वो हैं कहाँ पर, किस हालात में हैं और मतलब कहाँ पर हैं। बैनुल-अक़वामी दिन होने के बायस आज चंद शहरों में एहतजाजी रैलियां मुनक्कद की गई हैं, जिनमें हैदराबाद, क्वेटा और लाड़काना सरे फहरिस्त हैं। हर जगह सवाल एक ही है कि हमारे लापता अफराद किधर हैं। साहर बलोच, BBC उर्दू, कराची। आप BBC उर्दू का प्रोग्राम सरबीन देख रहे हैं। प्रोग्राम में आगे चलकर देखिएगा, म्यांमार से पनाह की तलाश में दरबदर रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेशी सरहद पर। और हमारी पार्टीशन सीरीज में एक ऐसे शख्स की आप बीती जिसने तकसीम दर तकसीम के अजाब सिर्फ देखे ही नहीं, झेले भी। BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में एक बार फिर खुश आमदीद। मैं हूँ आलिया नाज की। म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों और फ़ौज के दरमियान ताज़ा कशीदगी को 5 दिन गुजर गए हैं। अब भी म्यांमार से पनाह गुज़ीन भाग कर बांग्लादेश में पनाह लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरहद पर तैनात बांग्लादेशी फ़ौजी उन्हें मुल्क में दाखिल नहीं होने दे रहे हैं। ये लोग अब 2 मुल्कों के बीच फंसे हुए हैं और जान की दुहाई दे रहे हैं। बांग्लादेश तक पहुँचने में जो कामयाब रहे हैं उन्हें भी बताया गया है कि उन्हें जल्द अज जल्द वापस भेज दिया जाएगा। तफसील के साथ फातिमा। म्यांमार से बांग्लादेश के इस सफ़र के लिए ये लोग रात के अंधेरे का इंतखाब करते हैं। छोटी छोटी कश्तियों में दरियाए नाफ को पार कर जैसे ही बांग्लादेशी ज़मीन पर पहुंचते हैं, सरहद पर तैनात सिक्योरिटी एहलकारों के हाथ पकड़े जाते हैं। पनाह गुज़ीनों में मासूम बच्चे और हामला ख़वातीन भी शामिल हैं। वो घरों के जलाए जाने और रिश्तेदारों की हलाकत से खौफज़दा हैं। वो लोग बिलावजह गोलियां बरसा रहे हैं। रोजाना हमारे घरों को आग लगाते हैं। जो भाग नहीं सकते उन्हें घरों में बंद करके घर को आग लगा देते हैं। दूर से ही लोगों पर गोलियां दाग रहे हैं और कत्लेआम कर रहे हैं। अगर हम वापस गए तो वो हमें मार देंगे। कल फौज ने एक कश्ती पर गोली चलाकर उसे डुबो दिया। उस कश्ती में बुजुर्ग, खवातीन और बच्चे थे। हम वापस नहीं जा सकते। साहिल तक पहुंचने में कामयाब कश्तियों पर सवार पनाह गुज़ीनों को लंबे क़याम का मौका नहीं दिया जाएगा। सरहद पर तैनात फ़ौजी कहते हैं कि उन्हें ख़ास हिदायत हैं कि म्यांमार से आने वाले किसी भी शख्स को मुल्क में दाखिल न होने दिया जाए। सरहद से ही उन्हें लौटा दिया जाए। बांग्लादेशी शहर कोक्स बाज़ार में रोहिंग्या मुसलमानों का आना आम होता जा रहा है। दसियों बरसों से रोहिंग्या जान बचाने के लिए यहीं पनाह लेते आए हैं। पिछले साल म्यांमार के सिक्योरिटी इदारों की तरफ से सख्ती के बाद 70,000 से ज़ायद रोहिंग्या मुसलमानों ने बांग्लादेश में पनाह ली थी। मौजूदा पाबंदियों के बावजूद हज़ारों रोहिंग्या बांग्लादेश में दाखिल होने में कामयाब भी हुए हैं। वो कोक्स बाज़ार में दस्तावेज़ात के बगैर आने वालों के कैंप में रह रहे हैं। बांग्लादेशी हुकूमत के मुताबिक मुल्क में 5 लाख से ज़्यादा रोहिंग्या बगैर दस्तावेज़ात के रह रहे हैं। और तकसीम के 70 साल के सिलसिले में आपने गुज़श्ता रोज़ हमारे BBC उर्दू के पुराने साथी अली अहमद ख़ान से उनके मग़रबी पाकिस्तान में तजुर्बात और मुशाहिदात सुने। उनकी आपबीती की तीसरी और आखिरी कड़ी में आज देखते हैं कि बांग्लादेश बनने से पहले उस वक्त के मशरक़ी पाकिस्तान में वो किन हालात से गुजरे। बजाय इसके कि हम वहाँ गए थे और हिजरत करके गए थे एक नई जगह, कि उनका ताउन हासिल करते या उनकी दोस्ती हासिल करने की कोशिश करते, हमारा रवैया ये था कि इनको दबाओ। लैंग्वेज का जब मसला खड़ा हुआ है ना, आपको ताज्जुब होगा कि हर ज़िलाई हेडक्वार्टर में जो महाजिर थे उन्होंने उर्दू स्कूल तो बना लिया, बंगला नहीं पढ़ाई। बंगालियों को ये एहसास हुआ कि हमारी ज़ुबान या हमारी मुआशरत या हमारे कल्चर को तो ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म किया जा रहा है। तो वहाँ एक लैंग्वेज मूवमेंट शुरू हुआ। जब इलेक्शंस आपने कराए और उस इलेक्शन के तहत एक पार्टी मेजॉरिटी, थम्पिंग मेजॉरिटी, फैसला कुन अक्सरियत हासिल कर गई, तो उसको इक़्तिदार दिया जाना चाहिए था। आर्मी एक्शन हुआ तो हम बंगालियों को बंगाली नहीं कहते थे, मलऊन कहते थे।
ہمارے خاندان کا ہر آدمی، یعنی ہمارے 3 بھائی، ہمارے والد، ہماری والدہ رہ گئی تھیں اور یہ لوگ مارے گئے. تو جس عورت کے 3 جوان بچے مارے جائیں وہ تو ہمارے ابا کا بھی ذکر مشکل ہی سے کرتی تھی. میں جب گیا تو انہوں نے ایک دفعہ تلملائی کہا کہ بیٹا اگر میرے ہاتھ میں بندوق ہوتی، رائفل ہوتی، تو میں 3 بنگالیوں کو کھڑا کر کے گولی مارتی، یعنی اپنے 3 بچوں کو. پھر کہنے لگے کہ نہیں بیٹا یہ بڑی غلط بات ہے. تو یہ بڑا مشکل ہے. تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ کسی کو مت مارنا، اس لیے کہ اس کی ماں کو اتنی ہی تکلیف ہوگی جتنی مجھے ہوئی. میرے نزدیک ایک بنگالی قوم وہ ہے جن کے حقوق سلب کیے گئے اور پھر وہ اس مقام پر پہنچے. آج تک میں ان کے اس رویے کو کنڈیم نہیں کر سکا، اس کی مذمت نہیں کر سکا. ہماری معاشرت، ہماری زبانیں، ہمارے اقتصادی تعلقات یہ ایک دوسرے کے لیے کمپلیمنٹری مددگار ہیں. تو ہماری دوستی تو ہونی چاہیے، لیکن اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ وہ والی کیفیت ہو جائے گی جو پارٹیشن سے پہلے تھی، وہ نہیں ہوگی. تقسیم کے 70 سال میں یہ تھی علی احمد خان کی کہانی، جو زیادہ تفصیل کے ساتھ آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر بھی دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں. میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @عالیہ. اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا. پروگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو فیس بک اور ٹویٹر پر ہمارے صفحے حاضر ہیں. کل پھر حاضر ہوں گے، تب تک ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com دیکھتے رہیے. عالیہ ناز کی کو اجازت دیجیے.